Hello everyone and welcome to our channel our Book Nook 25, and today we will continue our discussion on man's search for meaning. So have you ever given a thought why spirituality hasn't been yet touched in this book? And here's your answer. Spiritual freedom. What is spiritual freedom? Is what Victor himself has experienced in the concentration camp. Like, no matter what is going on the outside, we can decide how we respond. This is exactly what spiritual freedom is, and this is what makes life very meaningful. Victor himself has experienced this in some of his prisoner mates. He had said that some men walked through the huts of others and consoled them, whereas they themselves were going through the same torture what everyone were going through. And even some shared their own food. जबकि हमने फूड पे पूरा एक एपिसोड किया है जहाँ हमें पता चला है कि कितना ही खाना मिलता था उन्हें. Still, they used to share their food with others. So what a person becomes is his inner decision and not the result of surrounding influences alone. Like आजकल हम बोलते रहते हैं यार मैं घर पे स्ट्रेस, कलीग्स का स्ट्रेस, कलीग्स ने ऐसे रिएक्ट कर दिया और फिर मेरे मदर इन लॉ ने ऐसे रिएक्ट कर दिया या बॉस ने ऐसे रिएक्ट कर दिया, एंड ऑल दिस आई शुडंट ट्रीट हर लाइक दैट, आई शुडंट ट्रीट हिम लाइक दैट जस्ट बिकॉज ही बिहेव्ड लाइक दैट. Surrounding is influencing us, but when surrounding doesn't influence us anymore, this is the spiritual freedom what Victor is talking about. This makes life meaningful and purposeful. There is a very beautiful line mentioned by Victor. Emotion, which is suffering, ceases to be suffering as soon as we form a clear and precise picture of it. I would like to explain this in an example which I experienced myself. So what happened that my cat Miles, my male cat Miles, was sitting near one of the dumbbell, and I thought I'll just pick up that dumbbell and keep where like whatever उसकी जहाँ जगह है वहाँ मैं रखना चाहती थी वो डम्बल, लेकिन उसके पास मेरा कैट माइल्स बैठा हुआ था. सो यू नो व्हेन आई वाज जस्ट पिकिंग अप द डम्बेल, जस्ट अ थॉट क्रॉस्ड इन माय माइंड कि व्हाट इफ बाय मिस्टेक इफ आई ड्रॉप दिस डम्बेल ऑन हिम. और मुझे लिटरली वो सिनेरियो इमेजिन हो गया कि मेरे हाथ से डम्बेल गिर गया है और फिर मेरे माइल्स पे गिर गया और लिटरली उसके चिथड़े चिथड़े उड़ गए टाइप ऑफ थिंग, यू नो. The emotion which immediately filled in me was guilt. And then how to overcome this emotion of guilt. जो चीज़ हुई भी नहीं है उस चीज़ के लिए just because वो thought आया मेरे दिमाग में, और वो thought ने कि इतना बुरा thought मुझे कैसे आ सकता है जिसको मैं एक अपना बच्चा कंसिडर कर सकती हूँ, उसके लिए मेरा ऐसा थॉट आ कैसे भी सकता है. और ये चीज़ ने पूरा गिल्ट भर लिया मुझे. एट दैट मोमेंट वॉट आई डिड वॉज आई स्टार्टेड पिक्चरिंग दैट आई एम शावरिंग माई लव ऑन माई कैट माइल्स, एंड मैं उसे बहुत सारे ट्रीट्स खिला रही हूँ. मैं उसे नीचे हमारे कंपाउंड वॉल में घुमा रही हूँ, एंड आई एम पैम्परिंग हिम. एंड यू नो वॉट हैपेंड? Immediately the emotion of guilt just left. बस ऐसे निकल गया. And I felt, yeah, this line is so true, that emotion which is suffering ceases to be suffering once we form a clear and clear picture of it. There is one very beautiful message Victor has written. I mean, I cannot pinpoint one example right now, but yeah, I'm sure every one of us has experienced it at some or the other point of time. Like
Let me read the message first. Victor has conveyed as how constantly living in the past makes life meaningless, as we cannot look at the opportunities that exist. Isn't it true? I mean, I'm damn sure कि सबने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कभी ना कभी. So in the concentration camp, we can literally see contrast of examples. सारे लोग साथ में रह रहे, फिर भी दो बहुत कॉन्ट्रास्ट एग्जाम्पल्स हम देखते हैं. जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल बताया कि लोग क्रिब कर रहे कि हमारी लाइफ कैसी हो गई है, दे आर क्राइंग इन द हार्ट्स, बट अदर्स फ्यू, आई मीन वेरी फ्यू ऑफ देम, विक्टर हैज़ मेंशन्ड देयर वर, बट वेरी फ्यू ऑफ देम डू एग्जिस्टेड, जो दूसरों को कंसोल कर रहे थे even in such kind of situation when they themselves, you know, this is, we can say this is also a contrast example. There's one more contrast example which I noticed is that cigarettes, और उस पे तो हम बात कर चुके थे कि अगर कोई प्रिजनर सिगरेट स्मोक कर रहा है मतलब उसने लाइफ पे गिव अप कर दिया है ना. और एक एग्जाम्पल विक्टर ने बताया है कॉन्ट्रास्ट टू दिस, जिसने वो गिव अप कर दिया है और दूसरे ने कैसे इस की डेथ आने वाली है उस चीज़ को कैसे लिया. सो विक्टर ने कहा है कि ही मेट अ वुमन इन द कॉन्सेंट्रेशन कैंप एंड शी वॉज अवेयर कि अब उसकी डेथ होने वाली है. शी वॉज अवेयर दैट शी वॉज गोइंग टू डाई, बट शी वॉज सो चेयरफुल एंड शी वॉज सो ग्रेटफुल दैट लाइफ हैड हिट हर सो हार्ड. आई मीन, एक तरफ हमें ऐसे देखने मिलता है कि जिसने गिव अप कर दिया है, सिगरेट स्मोक कर रहा है, उसे नहीं चाहिए वो सिगरेट के एक्सचेंज में खाना, और दूसरी तरफ शी इज़ ग्रेटफुल. टू कॉन्ट्रास्ट एग्जाम्पल, isn't it? Whenever, if you will read this book, I mean, I would recommend you all to obviously read this book, Man's Search for Meaning. Especially जो 50 to 100 pages में जो है लिखा हुआ, आई थिंक एवरी सिंगल लाइन इज़ अ कोट. आई मीन, उससे हम एवरी सिंगल लाइन से देर इज़ सम और द अदर लेसन वी कैन टेक एंड वी कैन अप्लाई इट इन आर डे टू डे लाइफ इवन टुडे. जबकि ये बुक थी 1945 में लिखी हुई, बट स्टिल टुडे वी कैन कोरिलेट इट एट द सेम लेवल. उसी डेप्थ पे कोरिलेशन हम कर सकते हैं. इफ़ यू रीड दोज स्टेटमेंट्स एंड दे विल बी सो इंस्पायरिंग. इवन इफ हम कुछ बैड फेस से नहीं जा रहे हैं, बट दे वुड बी इंस्पायरिंग फॉर आवर डे टू डे वेरी सिंपल स्ट्रगल्स ऑल्सो. सो आई हाईली recommend you all that you do read this book, Man's Search for Meaning, and I'm damn sure that after reading this book you will feel जो हमने feel किया कि every year we should make a ritual to read this book. As I said कि मुझे हर लाइन में कोट मिल रहा था, हर लाइन से इंस्पिरेशन मिल रहा था. उसमें कि बहुत दो खूबसूरत सेंटेंसेस मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगी. So here is the first one. Once the meaning of suffering had been revealed to us, we refused to minimize or alleviate camp's tortures by ignoring them or harboring false illusions. और अब second, suffering had become a task on which we did not want to turn our backs. Isn't it so deep and so inspiring? Don't you think so? Do let us know in the comments. Victor has also mentioned that there is connection between state of mind, thoughts and courage, hope, even immunity of our health. These all are interconnected somehow. Yes, I coming from a medical background, I definitely know that this all is ultimately related to health. Half of diseases of patients occur due to stress, and when the stress factor is controlled, we can see the healing begins, and even the patient also looks younger once the stress is removed. Victor has
seen this in even in concentration camps. Like Victor said that his friend dreamt of Liberation Day in March. Like he thought that 30th March 1945 को हम लिबरेट हो जाएंगे, हमें फ्रीडम मिल जाएगा. But when that didn't happen, so what happened, you know? His friend's body somehow got typhus because he imagined कि मैंने सोचा था कि हम फ्री हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया. तो उस स्ट्रेस की वजह से उसकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो गई और उसको टाइफस हो गया एंड अल्टीमेटली ही डाइड. विक्टर हैज़ ऑल्सो सेड दैट डेथ रेट काफ़ी बढ़ गया ड्यूरिंग द क्रिसमस एंड न्यू ईयर, बिकॉज सबको लगता था कि यार क्रिसमस तक के या न्यू ईयर तक के हम तो फ्री हो जाएंगे एंड वी विल सेलिब्रेट इट विद आवर लव्ड वंस, बट दैट डिडंट हैपन एंड दिस इम्पैक्टेड देयर हेल्थ सो बैडली कि वो किसी न किसी तरह से उनकी डेथ हो गई. दिखने के लिए तो टाइफस हो गया था इसलिए डेथ हो गई, बट द रियल कॉज वॉज दैट द प्रेशर. कोविड सिचुएशन में जो स्ट्रॉन्ग माइंडेड थे, जिनके थॉट्स थे कि हम वापस घर जाएंगे, जिन्होंने होप नहीं छोड़ा था, दे वर बैक एट देयर होम्स इवन फ्रॉम वेंटिलेटर्स. वेयर एज जिन्होंने ऐसे ही होप छोड़ दिया था कि यार मुझे तो कोविड हो गया, अब तो मैं मरने ही वाला हूँ या वाली हूँ, दे अल्टीमेटली experienced death because obviously the immunity declined more and caused death. So now we can see so much our state of mind has a pivotal role in our life. ऐसी सारी छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी कुछ है इस किताब से सीखने से. So I definitely recommend you again and again to read this book. Tears, crying is a sign of weakness. आदमी रो रहा है, तू तो लड़का है, तू कैसे रो सकता है. I mean, ये हम आज सुनते हैं, बट कैन यू बिलीव इस चीज़ का डिस्कशन इवन इस किताब में हुआ है जो 1945 में लिखी गई थी. सो इट इज़ सो मच प्रिवेलेंट सिंस long ago. But what Victor has to say about this is, there is no need to be ashamed of tears, as tears tells that man had greatest of courage, the courage to suffer. So रोना एक कमज़ोरी नहीं है. विक्टर ने 2 रेसेस के बारे में बोला है. विक्टर के लिए सिर्फ 2 रेसेस एग्जिस्ट करते थे. अभी जो सिचुएशन चल रहा है करंटली अराउंड अस, रिलीजियस एंड ऑल दिस थिंग्स को लेके, विक्टर के हिसाब से सिर्फ 2 रेसेस थे, डिसेंट एंड इनडिसेंट. एवरी डिसेंट ग्रुप हैज़ सम इनडिसेंट पीपल एंड एवरी इनडिसेंट ग्रुप हैज़ सम डिसेंट पीपल. काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स में या विक्टर के राइटिंग में इन दिस बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग में हमें दिखता है कि इवन इफ़ द एसएस मैन और कापोज वर बैड, बट उनमें कुछ अच्छे लोग भी थे और कुछ प्रिजनर्स से ही कापोज और एसएस मैन भी बने हैं. तो प्रिजनर्स जो उस इतने स्ट्रिक्ट थे या जिनको दूसरे पे जुल्म करना ज़्यादा ठीक लगता था, उनको ही चुना जाता था ना कापोज और एसएस मैन बनाने में. So every decent and indecent, and that is so true. I mean, we can also experience that every day. अब हमें तो पता ही है कि ऐसी सिचुएशन थी कैंप में, तो ऑब्वियसली सुसाइड थॉट्स तो आते ही है, सुसाइड थॉट्स तो आएंगे ही. तो अब क्या करें? तो विक्टर ने बहुत अच्छे 2 एग्जाम्पल्स में समझाया है कि जब ऐसे थॉट्स आते हैं तो प्रिजनर ने क्या करना चाहिए उस टाइम पे, कि दे शुड थिंक ऑफ समथिंग जिसमें वो इररिप्लेसेबल होते हैं. आई मीन अगर वो इंसान वहाँ पे नहीं है तो वो चीज़ हो ही नहीं सकती. अब जैसे कि एक 2
प्रिजनर्स थे जिनको ऐसे सुसाइड थॉट्स काफ़ी आ रहे थे, एंड दे हैड अ वर्ड विथ द ऑथर विक्टर ऑब्वियसली अबाउट दिस। एंड विक्टर ने उनसे थोड़ी सी बातचीत करी, पूछा, और फिर पता चला कि एक प्रिजनर जो था जिसको ऐसा थॉट्स आ रहे थे, ही वॉज अ फादर। सो विक्टर ने बोला कि यू शुड इमेजिन और यू शुड थिंक दैट योर चाइल्ड इज़ वेटिंग फॉर यू। उसके लिए और कोई दूसरा फादर हो नहीं सकता। सो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि यू हैव टू गो एंड मीट योर चाइल्ड, ये सब यहाँ से सब फ्री होने के बाद। एंड दैट रियली हेल्प्ड दैट प्रिजनर। उसके बाद उसको सुसाइडल थॉट्स जब भी आते, ही यूज्ड टू इमेजिन कि उसको वापस जाके मिलना है। अब सिर्फ ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली यंग मैन भी थे जिनकी शादी नहीं हुई थी, या फिर जिनको बच्चे नहीं थे, ऐसे भी लोग थे। तो उनको क्या उनको थॉट्स, सुसाइड थॉट्स आना एक्सेप्टेबल होना चाहिए, या उन्होंने सुसाइड कर लेनी चाहिए? तो वैसा नहीं था। कुछ ना कुछ ऐसे सोचना चाहिए जो हम इर्रिप्लेसेबल है, जो हमारे बिना हो ही नहीं सकता। जैसे कि जो दूसरा प्रिजनर का एग्जाम्पल था, उसमें वो प्रिजनर कुछ आर्टिकल या कुछ लिख रहा था। जो आर्टिकल था वो उसके एक्सपेरिमेंट के बिना, या उसके खुद के उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किए बिना नहीं पूरा होने वाला था। सो दैट शुड बी igniting fire in him continuously, so that these thoughts of suicide आए तो वो सप्रेस हो जाए या फिर उनका आना बंद हो जाए। एंड आई ट्रूली बिलीव दैट दिस वर्कड। आई मीन ऑब्वियसली दिस वर्कड, वो तो प्रूफ हो चुका है, बट या दैट्स रियली नाइस, यू नो। ऐसे सिचुएशन में रह के भी एक डॉक्टर की तरह सोचना, इट्स डिफ़िकल्ट। अब अपने को ऐसा लगता होगा, यार ये तो कितना सफ़र कर रहे, तो यहाँ से फ्री हो जाए तो इनकी सारी सफ़रिंग ख़त्म हो जाएगी। ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट द ट्रुथ। जैसे कि हमने भी हमारे लाइफ में कुछ सफ़र किया है और उस सफ़रिंग से निकल गए, लेकिन फिर भी आगे डिफ़िकल्टीज़ तो आई है और आती रहेगी। और ये प्रिजनर्स के साथ भी हुआ था। जैसे कि प्रिजनर्स ने इमेजिन किया था कि हम हमारे यहाँ से फ्री होने के बाद हम हमारे लव्ड वंस से मिलेंगे, बट व्हेन दे गॉट फ्री उनको पता चला कि उनकी तो डेथ हो गई ड्यू टू टाइफस या एनी इलनेस, या फिर उनको गैस चैम्बर में ले गए। आई मीन व्हाट वाज द सोर्स जो उनको कंटिन्यूस जारी रख रहा था उस सिचुएशन में, that didn't exist once they were out of the camp life, and that is also a kind of suffering. लोगों ने सोचा था, आई मीन यू नो, उस कंसंट्रेशन कैंप्स में लोग लिटरली इमेजिन करते थे कि मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर की घंटी बजा रहा हूँ। बट कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ कि वो घर गए, घर की घंटी बजाई और कोई था नहीं अंदर खोलने के लिए, जिनके लिए वो सोच रहे थे कि हम जाके उनसे मिलेंगे। दैट वॉज रियली, मतलब इट मेड मी सैड and made me realize that suffering has no ending, but it is an integral part of everybody's life. कुछ 75 to 100 पेजेस के बीच में, ऑब्वियसली अब इतना कंसंट्रेशन कैंप, लेकिन कंसंट्रेशन कैंप कभी तो ख़त्म हुआ था। तो ख़त्म होने के बाद सबको फ्रीडम मिल गई, और मुझे लगा ये उनको फ्रीडम मिल गई एंड दे विल बी हैप्पी नाउ, दे लिव देयर लाइव्स एंड ओके, फ्रीडम मिल गई, दैट्स ग्रेट। बट इस फ्रीडम का भी देयर सम साइकोलॉजी, देयर इज साइकोलॉजी ऑफ माइंड। विक्टर हैज़ थ्रोन सम लाइट अबाउट साइकोलॉजी ऑफ माइंड आफ्टर सडन फ्रीडम। जैसे कि Victor has said, some of the prisoners who were once oppressed, they themselves became oppressors. वो जैसे कि चलते हुए जाते थे खेतों में, और उनको कोई नोटिस नहीं कर रहा कि भाई ये इतना सफ़र करके आया है, उनको कोई अटेंशन नहीं दे रहा है, तो वो क्रॉप को काटते जा रहा है, क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हुए जा रहा है। एंड उनका ऐसा रिएक्शन था कि तो क्या हुआ,
मैं इतना कुछ सफ़र करके आया हूँ, इतना तो बनता है मेरा. दिस इज़ ऑल साइकोलॉजी ऑफ माइंड आफ्टर सडन फ्रीडम. इफ़ अ पर्सन गेट सडन फ्रीडम, फिर अगर कुछ लोग खा रहे तो वो बस अनलिमिटेड खाते जाते थे, और अगर कुछ लोग बातें कर रहे तो सिर्फ बातें करते रहते थे, क्योंकि उनको ना वहाँ पे बात करने मिलता था, ना उनको खाने मिलता था. सो यू नो दिस ऑल इट्स नॉट टुवर्ड्स द हेल्दी साइड ऑफ फ्रीडम. इस पे भी कुछ अच्छे से मेंशन किया है विक्टर ने. या I am a very firm believer of gratitude, and so many examples, so many like suffering they have went through, and every time I read such lines, it made me feel so grateful of what luxurious life I'm living. Obviously उनके दुख को लेके नहीं था ये, बट एक ये ऐसी फीलिंग मैं सबसे आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि नो मैटर वेर यू आर, नो मैटर वॉट यू आर डूइंग, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर. आई एम डैम श्योर दैट समथिंग और द अदर थिंग विच एवरी वन इज़ केपेबल ऑफ बीइंग ग्रेटफुल. कितना भी हो जाए ज़िंदगी में, तो ग्रेटफुल तो रहना चाहिए. And yeah, with this, the main part of the book is done. I mean, almost, yeah, 100 pages has been covered. In the next coming sessions, we will be talking about logotherapy. Next जो 50 pages remaining है, उसमें लोगोथेरेपी, ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म, इन सब चीज़ों में लिखी गई है, इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई है. एंड आई थिंक उस पर भी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट एपिसोड्स में. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस. सो डू प्रेस द लाइक बटन and subscribe our channel, our Book Nook 25, and press the bell icon to never miss an episode.